نے بیان کی ہے جناب من، آپ کو اس کا کوئی پتہ ہے تو آپ نے بیان کی ہے نا. چلیں زبانی کلامی بیان کر دیں. میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ حرفن اس کو درست بیان کریں، اپنا مفہوم بیان کریں کہ کیا اس میں نہیں ہے کوئی اہل کتاب مگر ضرور ایمان لائیں گے. ایک منٹ، یہ کون سی آیت ہے؟ 59 سورہ پہلے اس کے کہ ان کو موت آ جائے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لائیں گے. یہ سورہ نساء کی 159 ہے. قیامت کے دن ان پر ہوگا ان پر. کون سی آیت نمبر کون سی ہے؟ 59 دس نہیں رہا 159 10 باری دسیا. مجھے تو سورہ نساء کی 159 یہ نہیں نظر آ رہی ہے. تمہاری 160 161 ہوئے گی، 160 یا 161 ہوئے گی. ادھی 160 ہے، ادھی 160 ہونی ہے. آیت شروع کتوں ہو رہی ہے؟ ان الذین یکفرون. ایک منٹ مجھے دیکھ لیں تو میں اہل الکتاب نہیں، پڑے یہی ہے. یہ آیت غلط بیان کر رہے ہیں. اچھا تم صحیح کر دو. کیا میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلط سے مراد یہ ہے کہ آپ آیت نمبر کوٹ نہیں صحیح کر رہے. انہوں نے بتا تو رہے ہیں فی صاحب، اب کیا لکھ کے دے دیں آپ کو؟ میں نہیں، میرے پاس دوسرا فون ہوتا نا تو میں نے لفظ بائی لفظ کو پڑھ کے سنا دینی تھی. میرے پاس دوسرا فون نہیں ہے، وہ میں پڑھ نہیں سکتا کیونکہ میں ادھر سے آؤٹ ہوں تو ادھر آواز ہی نہیں آتی. یہ مسئلہ ہے. یہ خود پڑھ سکتے ہیں، ان کو نمبر بتا دیا، اب میں کیا کروں ان کو. ان کی 160 بنتی ہے. ہماری کون سی ہے؟ 161 کہہ رہے ہیں آپ؟ 159 ہماری، تمہاری مجھے نہیں پتا کون سی ہے. ایک منٹ، ہاں یہ بھی چیک کر لیں، پتہ نہیں کون سی صورت ہو کھولی ہوگی آپ نے. میں نے سورہ نساء کھولی ہوئی. آپ 159 پہ جائیں. اچھا تو یہ اچھا ٹھیک ہے. اور اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی نہیں مرزا قادیانی صاحب پہلے فیصلہ کر لو اہل ایمان ہے کو، اہل کتاب ہے کون. آپ بتائیں اہل کتاب کون ہے؟ میں تو کہتا ہوں نصارہ اور یہود جو چاروں کتابوں پر ایمان رکھتا ہے. اہل کتاب ہیں. وہ قرآن نے مجھے بتایا چاروں پر نہیں، چاروں کا نہیں کہیں لکھا. اہل کتاب ہیں. تورات یہودیوں کی ہے، انجیل نصارہ کی ہے. اہل کتاب ان کو کہا گیا. آپ کس کو کہتے ہیں اہل کتاب؟ جارے کی بندہ دس نہیں رہا جو دونوں سارا. مطلب جو قرآن کو مانتا ہے وہ اہل کتاب میں نہیں آتا. تم نے بولا اہل کتاب کون ہے؟ میں نے کہا تم آپ نے اہل کتاب ہیں جو دونوں سارا. دیکھیں بات ان سنیں، ابھی آپ نے کلیم کیا کہ فی صاحب رک جائیں. فی صاحب ان کو اہل ایمان کہا گیا ہے، ان کو اہل کتاب نہیں کہا گیا. ان کو جو ہم ہیں مسلمان ہیں، جو قرآن پاک کو مانتے ہیں. آپ نے ایک بات سنی ہوئی ہے راجہ صاحب کہ یہ کہتے ہیں کہ جی اہل کتاب کے ساتھ کھانا پینا یا اہل کتاب کے ساتھ نکاح جائز ہے. بات کیا ہو رہی ہے اس میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی زندگی کے کتاب اہل ایمان کے ساتھ تو میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ اہل ایمان کے ساتھ نکاح جائز ہے. میں فضول سوالوں کا جواب نہیں دوں گا. بات ہو رہی ہے موت کی اور زندگی کی، اس پر آؤ. چھوڑو کھانے کو چھوڑو. نہیں، آپ کے پاس نا وہ فضول بات نہیں ہے کہ کوئی اہل کتاب کے میں ساتھ نکاح جائز ہے. میں نے تو کہیں نہیں سنا کہ اہل ایمان کے ساتھ نکاح جائز ہے. ٹھیک ہے، تم نے جو بھی سن، تم کیا مراد لیتے ہو اہل کتاب سے یہ بتاؤ. میں تو جو چاروں کتابوں پر ایمان لاتا ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ وہ اہل کتاب قرآن والے اہل ایمان ہیں باقی اہل کتاب ہیں. یہ آج ایک سیکنڈ بات کرنے دیں امتیاز بھائی. ایک جو اہل کتاب سیکنڈ نہیں. بھائی ایک سیکنڈ تیار جو ایک سیکنڈ ابھی اس کو حل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل یا اہل الکتاب، اے نبی کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ آؤ اس بات کی طرف جو تم میں اور ہم میں مشترک ہے. اب میرے اللہ کے بندو اس بات پہ خود غور کر لو. جو سوال کر رہے ہیں جی اہل کتاب کون ہوتے ہیں، بھائی قرآن نے خود نشاندہی کر دی ہے کہ دیکھیں نا، اللہ فرماتے ہیں اے نبی اہل کتاب سے کہو. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو امت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ٹائٹل نہیں دیا. اہل کتاب ایک قرآن کی اصطلاح ہے جس کا اطلاق قرآن نے یہود و نصارہ پہ کیا ہے. اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہے. مطلب آپ اہل کتاب نہیں ہو، آپ اس چیز کا اقرار کر رہے ہو. آپ اس چیز کا اقرار کر رہے ہو کہ آپ اہل کتاب نہیں ہو. ہم کو مومنین بولا گیا ہے.
यार घुमा फिरा के बात मत करो, घुमा फिरा के सीधी जवाब दो मुझे कि आप अहले किताब हो कि नहीं हो। मुझे ये ना तो आपको मुसलमीन कहा गया है, मोमिनीन एक कहा सेकंड गया, मैं बताता हूँ, मैं आपको मुनाफिकीन बता कहा देता गया, हूँ, मैं आपको क्या कहा गया वो मुझे नहीं उससे भाई मैं आपको आप भाई ठहरे हो ना, अपनी मैं को आपको हम अहले किताब प्यारे नहीं भाई हैं। बात करने का तरीका प्यारे तो भाई नहीं अभी आपको नहीं बात अभी करने का आपको तरीका क्या है? मैंने आपसे सवाल पूछा है भाई, आप अहले एक किताब सेकंड हो है। या नहीं। आप मेरे से पूछो मैं एक- अहले किताब हूँ या नहीं, मैं कहूंगा मैं हूँ। मैं नहीं कहूंगा मुझे मुस्लिमीन कहा गया है, मुझे सालेहीन कहा गया है, मुझे भाई एक फलाना मिनट कहा मुझे गया है। दीजिएगा जरा। इस आयत में हमें नहीं कहा गया अहले किताब, इस आयत में हमें अहले किताब नहीं आप कहा। अहले किताब हो या नहीं हो, हम अहले किताब हैं, इस आयत में लेकिन नहीं कहा आपको। चलो भाई इस मेरी- आयत में नहीं मेरी कहा आवाज गया आ रही है? इस वक्त एक मिनट इम्तियाज साहब आपको मैंने आपको पहले भी इम्तियाज साहब मैंने आपको पहले अर्ज किया था मेरी बात खालिद साहब से है, आप उनकी एम्बुलेंस मत बने, मत बने एम्बुलेंस। मैं भाई, एक बंदे से भाई। मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ, दो बंदों से नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपकी बात नहीं सुनना चाहता इम्तियाज भाई साहब। मैं आपसे मैं आपकी आपसे बात कोई नहीं बात सुनना कर चाहता रहा। हूँ, आप ना मैं सुनिए, आपकी बात ना नहीं सुनिए, सुनना कोई चाहता बात हूँ। नहीं। बस बात खत्म हो गई। यार इनको खालिद साहब के साथ इनको मेरी जरा बात म्यूट करने करें, दें। मुझे बात हाँ जी करने दें। खालिद साहब आप अहले किताब हैं या नहीं। मेरे से अगर आप सवाल पूछते हैं मैं अहले किताब हूँ कि नहीं, मैं हूँ। मैंने जी। कोई तो हेर फेर नहीं करना कि मैं मुस्लिमीन हूँ, मैं मुना सवाल की है, जवाब तो सुन लो ना जी। स्पीड एक पकड़ के तो शुरू हो जाते हो, बात भी किसी की छोटी शॉर्ट बात घुमा करो के यार। जवाब नहीं देना हाँ या नहीं, आप अहले किताब लंबी हैं लंबी या बातें नहीं। नहीं। इस आयत में मुझे इस नहीं आयत को कहा छोड़ें, गया इस आयत को छोड़ दें, इस आयत को भूल हाँ, जाएं मैं थोड़ी अहले सी। किताब हूँ, मैं आप मानता इस हूँ वक्त कुरान अहले मजीद को। किताब हैं या नहीं। हाँ, आप मैं कुरान मैंने ये मजीद को पूछा मानता हूँ। मैंने ये मैं पूछा कुरान है मजीद कि को मानता हूँ। आप मैंने आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब दें, घुमाएं फिराएं नहीं। मैं कुरान मजीद को मानता हूँ। आप आगे बढ़ो। किताब है आप हाँ मैं हूँ, इस आयत में मुझे नहीं बोला गया, लेकिन मैं हूँ। क्या हूँ, मैं कुरान मजीद को मानता हूँ। मैं क्या क्या मुसलमान हूँ? हूँ, ये फिर वही बात। मैं कुरान मैंने आपको पूछा आप कुरान मजीद को मानते हैं कि नहीं मानते। मैंने ये सवाल है मेरा जो आप जवाब दे कुरान रहे हो। मजीद क्या किताब नहीं है? नहीं मुझे आप मुंह से ये कहें हाँ मैं अहले किताब हूँ। हूँ ना हूँ, क्या हूँ? कह रहा हूँ 10 दफा बोला तुम्हें। क्या हूँ? मैं अहले किताब हूँ, कुरान मजीद को मानता हूँ। इस आयत में मुझे इस तरह बात करते हैं। अब हुई है बात, बड़ी मुश्किल से आपने माना है, ना चाहते 10 हुए। दफा बोला मैंने, 10 दफा नहीं बोला है। हूँ, मैं आपने हूँ, मैं कुरान मजीद- मजीद को मानता हूँ, मैं हूँ, मैं कुरान मजीद ऐसे कहें सीधा ठोक के मैं अहले किताब अब आगे चलो, अब आगे चलो। आगे ये मान भी है। जाए आगे चलें, अब आगे मान भी चलो, आगे चलें, अब आगे मान भी चलो। आगे चलें, आगे चलें। ये इस आयत में अहले किताब किसको कहा गया है? आप आगे चलो, जी बताओ। चलें। अब नहीं अब आपने ये जो 159 बयान करके साबित करने की कोशिश की है कि जी तमाम सब को छोड़ो, इस आयत में अहले किताब किसको कहा गया, ये बताओ। किसको कहा गया? वो तुम बताओ, मैं तो बता दिया तुम्हें, यहूदा नसारा को। यहूद नसारा को कहा गया तो उस वक्त कुरान नाज़िल नहीं हो रहा था, नबी करीम पे कुरान नाज़िल नहीं हुआ गया, था। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम अपना नहीं उस बताओ। वक्त कुरान नाज़िल नहीं हुआ था कि आप उनको इनमें से माइनस कर देंगे। यार ये क्या बात है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम्हारा अकीदा क्या है। ये यहाँ जो कहाँ लिखा हुआ है, किसको कहा आप मुझे गया? ये बताएंगे यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि अहले मुराद से इस आयत में लिखा हुआ है। इस आयत में अहले किताब से मुराद सिर्फ अब यहूद आयो और बात। नसारा हैं। अब भाइयों ना बात सुनो, हदीस को मानते हो? मैं हदीस को मानता हूँ, लेकिन अगर एक कोई भी हदीस कुरान के साथ टकराती है, मुतसादिम है, मैं उसको नहीं मानता। That's it। अच्छा, इस आयत का शान नुज़ूल पता है? आप बताएं। मैं बताऊंगा तो फिर मैं तो हदीस पेश करूंगा उसका। नहीं मैं तो वही कह रहा हूँ कि इस कुरान से साबित करें पहले और फिर मैं हदीस देखूंगा। मैं अगर कुरान से दोनों तुम्हें चीजें कह रहा मिलती हूँ होंगी कि तो मैं अहले बात किताब यहूदा नसारा को मुखातब किया गया है, और मैं इसका सबूत तो हदीस से दूंगा ना। और अगर वो हदीस कुरान से टकराती होगी तो मैं उसको नहीं मानूंगा। इम्तियाज भाई ने तुम्हें आज पढ़ के सुनाई है ना, आओ उस बात की तरफ जो हमें तुम्हें मुशरिक है। किसको कहा गया है? किताब को कहा गया है कि क्योंकि अल्लाह, वहाँ मुशरिक का मतलब है अल्लाह एक है, यहाँ से यानी अल्लाह एक है। रुक जाओ, हम में तुम में मुश्तरक है। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ यहूद नसारा को कहा गया? जब आप अपने आप को उनमें शामिल कर रहे हो, हम में और तुम में, इसका मतलब है कि हम भी वही हैं जो तुम हो। अहले किताब तुम भी हो, हम भी हैं। आप किस तरह कह रहे हैं कि इस किताब में अहले किताब से मुराद सिर्फ यहूद नसारा है? हम में तुम में जो चीज मुश्तरक है, जब मैं और आप अहले किताब ही नहीं होंगे। हमें उनमें क्या चीज मुशरिक है? हमें और अहले किताब में क्या चीज ये मुशरिक हम है? का लफ्ज इस्तेमाल करने से मुराद है, इस आयत में अहले किताब से मुराद सारे हैं, जो कि आप निकाल रहे हो कि यहाँ पे मुराद यहूद नसारा है। सारे से मुराद यहूदा नसारा इसमें शामिल कर रहे हो? मैं तो कर रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि वो ठीक नहीं है, हूँ? बात खत्म। आप ज्यादा बहस नहीं आप कह रहे हो कि आप नहीं हो ठीक है, उसमें। कंप्लीट होगी बात खत्म। अब यहूदा नसारा ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले वो अगर फोत हो गए हैं तो क्या उन पर ईमान ला चुके हैं यहूद? ये उनका मामला, मेरे से ना पूछें आप। कुरान कह रहा है लाएंगे, कुरान कह रहा है लाएंगे।
लाएंगे तो वो जैसे कि क़यामत है कि उस वक्त ले आएंगे, उस वक्त आ जाएगा। तो वो उसका अगर फौत हो गया कैसे लाएंगे? अच्छा सुने, इधर आए, एक मिनट रुक जाओ। सूरह माइदा, एक मिनट यार, राजा मान लाएंगे। राजा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ 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 ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਦੋ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਦੱਸ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਕਿਤਾਬ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੂਰਾ ਮਿੰਟ ਮਾਇਦਾ ਜੀ 75 ਨੰਬਰ ਆਇਤ तो कोई ने लम्मी पियेंगी पानी है 600 हो गया। हफीज शेख वो लिखे है किताब च कि ईसा अलैहिस्सलाम दी मौत से पहले अहले किताब उन पे ईमान अच्छा लाएंगे। चलो ठीक है, लिखा है, रुक जाओ, चलो जी ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ मान ली कि जी उसमें लिखा है कि वो ईमान लाएंगे। सूरह मायदा की 75वीं आयत निकालें। सूरह मायदा की 75वीं, पहले इसका फैसला कर लो, पहले इसका फैसला कर लो। हली तो गल करना ईमान किदे ते लेना है? जो ईसा ते लेना ने जेड़े जिंदा ने, ते 75वीं आयत कढो, ईसा फौत हो ईसा गया। अलैहिस्सलाम की मौत से पहले क्या यहूद तो पे फिर ईमान लाते हैं? सुन लो ना, सुना। आप 75वीं आयत सुन लो ना, उसका तर्जुमा सुन लो। सूरह मायदा की 75वीं आयत है, मसीह इब्ने मरियम सिर्फ रसूल है, इससे पहले रसूल गुजर चुके। हुण उस वक्त हजरत ईसा जिंदा ने, और वो बताया जा रहा है कि उनसे पहले रसूल जो हैं वो गुजर चुके हैं। अब अगर आप सूरह आल इमरान 144 पे आए तो उसमें क्या आ रहा है? और मोहम्मद एक रसूल ही है और उससे पहले तमाम रसूल गुजर चुके। वहां हजरत ईसा से पहले तमाम रसूल गुजर गए का क्या मतलब है? फौत हो चुके हैं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए थे। मौत का काम जिक्र है, मौत का काम जिक्र है। आल इमरान में वही आयत दोबारा बयान की जा रही है जहाँ कि लिखा है कि उनकी मौत से पहले, अरबी में मौते का लफ्ज लिखा है, मौते ही उनकी मौत से पहले। जनाब चुप कर जाएं, चुप कर जाएं। क्यों और चुप कर रहा हूं? मोहम्मद एक रसूल है। घंटा हो गया बोलते जा रहे हो, चुप कर जो। नहीं, लंबी तकरीर मैं मैंने नहीं साबित सुनी कर रहा हूं कभी ना, किसी मैंने की। दोनों मैं लंबी आयतें तकरीर नहीं सुनता। बात सुनो, नहीं बात सुनिए, सुनते तो करनी ना तो सुनो। करो, वरना ना मैं ऐसे लंबी तकरीर नहीं किसी की सुनता। मैं नहीं मुझे सुनते, ये बताओ इसलिए कि मौते ही का मतलब क्या है? मौते ही का मतलब क्या है? जब कुरान एक जगह पे कह रहा है कि हजरत ईसा से पहले तमाम इस आयत में मौते ही का मतलब क्या है? कबले मौते ही का क्या मतलब है? मैंने जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, हजरत ईसा से मैं पहले तुम्हारी तमाम बात रसूल सुनूं, गुजर तू गए। इस आयत पे बात की है। और दूसरी जगह पे आ रहा है हजरत मोहम्मद से पहले तमाम नहीं, रसूल गुजर ये गए। इसको चुप कराओ, इसको चुप कराओ, मॉडरेटर जो है इसको चुप कराओ। क्यों चुप कराओ? अच्छा हालत साहब हफीज साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ क्यों नहीं बता? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਲਤ ਸਾਹਿਬ मुबारक साहब, मैं 2 आयतां पेश कीतियां ने सर, 2 मिनट ले लो, एक मिनट है तो 2 मिनट ले लो, डायरेक्ट ना हो डायरेक्ट नहीं हो रहा। मैं कुरान तो गल कर रहा, मैं कोई हजरत मसीह मौद की किताब नहीं कड्डी। एक आयत में आ रहा है कि हजरत ईसा से पहले सूरह मायदा में आ रहा है, सूरह मायदा में आ रहा है ठीक है, छाड़ गल नो। हजरत ईसा से पहले तमाम रसूल गुजर गए। कबले मौत का माना क्या है? हजरत मोहम्मद से पहले तमाम रसूल गुजर गए। तो हजरत मोहम्मद से पहले हजरत ईसा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? कबले मौते का माना करो, तर्जमा करो कबले मौते का। कबले मौते का नहीं, कबले वो गलत कर रहे हो आप, तुम सही कर लो। कबले मौते का मतलब ये है कि जब लोग हजरत ईसा पे ईमान नहीं लाए, तुम जो माना करना है, तुमने तर्जमा जो करना है वो करो, जो तुमने जो तर्जमा करना है वो कबले करो। मौते किसकी मौत? हजरत ईसा की। तुम करो ना, मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं तो तुम कह रहा अपना हूँ कि वो तर्जमा तो करो, कहा मुझसे गया क्या कि पूछ रहे लोगों हो? को कहा गया है कि लोग अपनी मौत से कबल उन पर ईमान लाएंगे। ये तो नहीं कहा गया कि हजरत ईसा की मौत से कबल उन पर ईमान ले आएंगे। आपने कहां से कबले मौते का मतलब कबले मौते ईसा ले लिया है? कहां से लिया ये आपने? मुझे बताओ। ये जो मैंने सूरह आल इमरान आपको बताई है कि आल इमरान की तरफ जाऊंगा नहीं, पहले तो मैं इधर बात करूंगा ना 59 पे जो तुमने खोली है। ये तुम छलांगे तो नहीं लगाने दूंगा मैं तुम्हें पे। एक आयत को छोड़कर दूसरी तरफ दौड़ जाओ। मैं तो नहीं दौड़ रहा हूं। बात करनी है इस पे। मैं तो नहीं दौड़ रहा हूं। कबले ही मौत का किसको बोला गया कि मौत किसकी मौत से कबल ईमान लाएंगे? किसकी हमारी मौत से कबल तुम, मैं, तुम, हजरत ईसा नहीं। मेरी मौत, मैं अपनी मौत से कबल, आप अपनी मौत से कबल। हजरत ईसा का कहाँ लिखा है कि हजरत ईसा की मौत से कबल लोग उन पर ईमान लाएंगे? ये मुझे तर्जुमा करके लाके दिखा दो कि वो लिखा हुआ है कि हजरत ईसा की वफात से पहले लोग उन पर ईमान ले आएंगे। ये कहाँ? बेही का क्या माना है? बेही का क्या माना है? बेही का क्या बेही माना का है? मतलब होता है हजरत ईसा। खुश हो? बेही बेही का का मतलब क्या होता है मतलब? जनाब हजरत ईसा। बेही का क्या माना है? क्या बातें करते हो यार? बेही का क्या 1 to 1 कर लो, कोई समझ ते आ जाए। हालत साहब हफीज कल ना ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। जाने तो तकरीर करता सुनता है कोई किसी की बनो तो की गल करे। एक मिनट नजर साहब, मेरी एक बात सुने। मैंने अच्छा, जो 2 आयतें बयान की हैं, आराम आराम से बात करें, अग्रेसिव नजर साहब, यार बात करें, एक आराम मिनट। आराम से। नजब साहब, मैंने जो 2 आयतें बयान की हैं, एक में मैंने हजरत ईसा के नाम के साथ कहा है कि ईसा से पहले जितने रसूल आए वो गुजर चुके हैं। दूसरी आयत मैंने बयान की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेके मोहम्मद एक रसूल हैं और उनसे पहले जितने रसूल आए वो गुजर चुके हैं। नाम के साथ कह रहा हूं ना।
ये साहब मुझे क्या कह रहे हैं, बेही का क्या मतलब है, बाहा का क्या मतलब है, वो कबले मौते का क्या मतलब है। बाल ओ भाई हजरत ईसा का नाम दिखाओ मुझे, जैसे मैंने दिखाया है। मैं हजरत ईसा का बता रहा हूँ कि ईसा एक ठीक हो रसूल गया, थे। मौकफ आ गया, मौकफ आ गया, ये मुझे बता रहे हैं कि जी मौकफ आ गया, बेही का मतलब जो है ना वो आप लेंगे हजरत ईसा। मौकफ अच्छा आ गया, आपने बस ठीक हो गया। बताओ। सूरतुल मायदा की आयत नंबर 85 कही है, वो जरा पढ़िए एक दफा हफीज साहब, बिल्कुल मैं भाई, भी एक जरा मिनट देखना चाहता हूँ एक साथ। मिनट। हाँ जी, हालत साहब दसो जी हो। नहीं एक मिनट यार, हफीज साहब आयत पढ़ें जो आपने अभी कहा कि सूरह मायदा की आयत नंबर 85 जो है, प्लीज पढ़िए। नहीं 159 इन्होंने बताई है, वो आप पढ़ें, आप देख लें कि वो क्या उसमें है। उसमें से तो आप बात आगे निकल आई है ना। आप कौन सी आयत का हवाला दे रहे हैं, आप उसकी बात करिए अभी हफीज साहब, फिर उसको भी देख लेते हैं। मैंने इनको दो आयतों का हवाला दिया है, एक सूरह आल इमरान 144 और दूसरी सूरह मायदा 75। अच्छा मायदा की 75, ठीक है, ओके थैंक यू। समझ गए ना। वो मैंने इनको नाम के साथ दिया है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है हजरत ईसा के बारे में कि हजरत ईसा से पहले मसीह इब्ने मरियम सिर्फ रसूल है, इससे पहले भी रसूल गुजर चुके ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? किदा ਇਸ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ? ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ यार, गुजर गए। ਪਹਿਲੇ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨਬੀ अच्छा ਗੁਜ਼ਰੇ तुसी हुण पता की दसन लगे हो, तो आप मुझे ये बता रहे हो कि इसका मतलब ਉਹ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? अच्छा डायरेक्ट ना हो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नजफ रुक जाओ पहले खालो साहब इस तुसी आयत दुनिया का तो अगर चले जो- जाओगे, तुसी दुनिया तो चले जाओ और कोई ये जी खालो साहब गुजर गए ने, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है कि कितों गुजर गए ने, मोटर पे तो गुजर गए। पहले आयत का तर्जमा पढ़ लेते हैं, फिर आप दोनों बात आगे चलाना ताकि सुनने वालों को भी समझ आए। आप देखें मुझे एक मिनट मुझे पहले बता ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਿੰਟ ਕੰਪਲੀਟ होए ने। ग्लोबल साहब एक मिनट मुझे पहले पूरा तर्जुमा बता लेने दें, मुझे पहले मैं दोनों को मुझे पहले interrupt नहीं तर्जुमा करूंगा। बता लेने दें फिर आप बात करें। आप ही का भाई तर्जमा यार मैंने इरफानुल कुरान से लिया है, मैं आपको हवाला दे के पूरी बात करूंगा, ऐसी कोई बात मुझे एक मिनट मुझे पहले सूरह मायदा का तर्जुमा बता देने दें। मसीह इब्ने मरियम सिर्फ रसूल है, इससे पहले रसूल गुजर चुके, इसकी माँ सदीका थी, दोनों खाना खाते थे का क्या मतलब होता है? ये तो नहीं कि सुबह खाते थे, मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है, दोनों खाना खाया करते थे, मतलब जिंदा रहते थे, खाना खाते थे, उनकी जरूरत थी खाना खाना। दोनों हजरत मरियम और उनका बेटा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दोनों खाना खाते थे। इसका क्या मतलब है कि वो अभी मौजूद हैं, खाना खाते हैं? क्यों नहीं कहा कि भाई वो जिंदा हैं और वो खाना खाते हैं? ये बातें करते हैं कि मौत किधर लिखी है, तो मौत किधर नहीं लिखी। अब मैं तर्जमा कर देता हूँ ताकि सबको अच्छे से समझ आ जाए। ये हमारे हफीज साहब ने अभी हवाला दिया है सूरह मायदा का, आयत नंबर इसकी 75 है। मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम रसूल के सिवा कुछ नहीं है, आगे ब्रैकेट में लिखा है यानी खुदा या खुदा का बेटा और शरीक नहीं है, फिर ब्रैकेट बंद हो गई। यकीनन इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं और उनकी वालदा बड़ी साहब सिद्क ब्रैकेट में लिखा है वलिया थी, वो दोनों ब्रैकेट में मखलूक थे क्योंकि खाना भी खाया करते थे। ए हबीब ब्रैकेट्स में देखिए हम उनके लिए किस तरह की आयतों की वजाहत से बयान करते हैं, फिर मलाजा फरमाइए कि वो किस तरह फिरे जा रहे हैं, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है हक से। ब्रैकेट को आपने निकाल देना है क्योंकि ये ब्रैकेट तर्जुमा करने वाले के अपने अल्फाज हैं, इसलिए उसने इसीलिए मैंने बता दिया ब्रैकेट जहाँ लगाइए। जहाँ आप ब्रैकेट है मोहतरम। अच्छा ठीक है, मैं ब्रैकेट के बगैर भी कर देता हूँ। मसीह इब्ने मरियम रसूल के सिवा नहीं है, यकीनन उनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं और उनकी वालदा बड़ी साहब सिद्क थीं, वो दोनों खाना भी खाया करते थे। देखिए हम उनके लिए किस तरह आयतों को वजाहत से बयान करते हैं, फिर मुलाजा फरमाइए कि वो किस तरह फिरे जा रहे हैं। ये है जनाब पूरी आयत का तर्जुमा। अब आप दोनों बात कीजिए। जहाँ तक थे का तो अल्लाह का आपने थे लफ्ज़ पे जोर दिया कि थे लिखा हुआ है तो इसलिए ये ज़ाहिर करता है कि वो फौत हो चुके हैं, यही बात है हफीज साहब। आपने खाना कल भी खाया था तो आप फौत हो गए हैं, ये जिंदा है आज? मैंने खाना खाया था जी, अभी आज दोपहर में मैंने कल खाया था और मैंने कल खाना खाया था और मैं अभी तक खा रहा आप दोस्तों और मैं खाता रहूंगा।
अब मैं वापस ले आता हूँ गुफ्तगू में, इतना ही बात थी ताकि तर्जमा सबको समझ आ जाए। जो आप बात कर रहे हैं ना वो समझ भी आनी चाहिए ना यार, और कोई अग्रेसिव ना हो और आराम से बात करें दोनों मिल के जरा। जी बात कीजिए जनाब। आप में से किसी के पास 2 फ़ोन हैं तो मैंने मसला बन रहा है 2 फ़ोन का, क्योंकि मैं इसको इसको नाम भी ईसा अलैहिस्सलाम का बताना चाहता हूँ। ग्लोबल भाई जी आपने 2 फोन में से जो बात निकालनी है बताइए, देखते हैं कि हम क्या कर ग्लोबल सकते भाई हैं। ग्लोबल भाई निसा की आयत नंबर 157 है, वो ग्लोबल भाई पूरी पढ़ के उसका तर्जुमा भी बताइएगा। जी ठीक है। ग्लोबल भाई कल आपने मुझसे बात की थी। हाँ जी की थी। तो आप तो मर गए हैं, अभी किधर से बात कर रहे हैं? बस मैंने वो पॉइंट रेज कर दिया है दोस्तों को, वो सुनने वाले सुन लेंगे। लेकिन आप क्या कह रहे हैं खालिद साहब, आप बताइए कि आप क्या निसा की आयत नंबर 157, 158, 159 तीनों को मिला के पढ़िएगा। तो एक मिनट वहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आया या नहीं आया? ये कह रहे ईसा अलैहिस्सलाम का नाम कहाँ है? मैं इसको ईसा अलैहिस्सलाम का नाम दिखाना चाहता हूँ। ओके ये इनको मिला के पढ़े प्लीज मुझे, क्योंकि मैं बाहर चला जाऊँ तो मैं फिर इकराम, आपने जो आयत बयान आपने जो आयत बयान की थी उसमें हजरत ईसा का नाम दिखाएं। मैंने जो आयत बयान की है मैंने उसमें हजरत ईसा का नाम दिखाया है। मैंने ये नहीं किया कि मैं आपको 10 आयतें पीछे ले जाकर हजरत ईसा का नाम दिखा रहा हूं। हजरत ईसा का नाम कुरान में 25 दफा आया है। हजरत ईसा का नाम कुरान में 25 दफा आया है, मुझे भी पता है। आपने मेरे इल्म में इजाफा नहीं किया। हजरत ईसा की जो आयत आपने कोट की है उसमें हजरत ईसा को साबित जी करें। मैं उसी में दिखा रहा हूँ, वही दिखा रहा हूँ। सबर ते करना या सोड़े क्यों पैंदे हो? तो कोई सबर नाल गल नहीं सुननी होंदी। वो सारे घबराए ने, कहंदे ने तुसीं गल नहीं सही कर रहे। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਇਓ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 25 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ग्लोबल भाई वो आयत पढ़ी 157, 8 ਤੇ 9 तीनों मिला के जी मैं देखता हूँ, एक मिनट ठहरिए। जी पढ़िए। मैं ना फाइंड आउट कर रहा हूँ। ना करोगे कि मोहम्मद एक रसूल हैं और उनसे पहले तमाम रसूल गुजर चुके, फिर क्या कहोगे? यार वो गुजर गए जैसे खाना खाते थे। ये क्यों नहीं कहा कि खाना खाते हैं? तब यार पता सबर चलता कर कि वो जिंदा है। के खादी सबर कर ले 2 मिनट के हो गई क्या ही होना? मैं आज तो पढ़ देने थोड़ा फिर गल करिए अगे आओ। आज तो पढ़दा ना ग्लोबल भाई बेमंतकियां गल्लां करते पे हो। भाई मैं 57 आयत नंबर पे आ गया हूँ। हां ठीक है। यही है ना, वो कौलिहिम इन्ना कतलनल मसीह ईसा इब्ने मरियम रसूल अल्लाह। मसीह इब्ने मरियम कौन ने पता ना सारे को, तो वजाहत की जरूरत नहीं है। अच्छा 157 नंबर पढ़ूं जी? जी 157 फिर 158 और 9 लो भाई हफीज साहब, और आपकी हेल्प के लिए 157 है, और हफीज साहब मैं ब्रैकेट्स नहीं पढ़ूंगा, सीधा ही पढ़ूंगा। और उनके इस कहने की वजह से कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला है, हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना उनको सूली चढ़ाया, मगर उनके लिए हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इससे शक में पड़े हुए हैं। उन्हें कुछ भी इल्म नहीं मगर ये कि गुमान की पैरवी, और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया। अब मैं ब्रैकेट्स के साथ भी पढ़ देता हूँ ताकि समझ आ जाए। और उनके उस कहने यानी फखरिया दावा की वजह से भी कि हमने अल्लाह के रसूल मरियम के बेटे ईसा मसीह को कत्ल कर डाला, हालांकि उन्होंने ना उनको कत्ल किया और ना उनको सूली चढ़ाया, मगर हुआ ये कि उनके लिए किसी को ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया गया। और बेशक जो लोग उनके बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं वो यकीनन इस कत्ल के हवाले से शक में पड़े हुए हैं। उन्हें हकीकत हाल का कुछ भी इल्म नहीं मगर ये कि गुमान की पैरवी करें, और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को यकीनन कत्ल नहीं किया। आयत नंबर 157 कंप्लीट हो गई। आयत नंबर 158 बल रफ़अहु अल्लाहु अलैहि व कान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ ब्रैकेट में लिखा है आसमान पर उठा लिया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। इन अल्लाह लिफ्टेड हिम अप टुवर्ड्स हिमसेल्फ इन हेवन। ग्लोबल भाई किसको अपनी तरफ उठा लिया? किसको अपनी तरफ उठा लिया? बल्कि अल्लाह ने उन्हें किने ये इधर ना जो तर्जमा लिखा हुआ है मैं वही आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ ब्रैकेट में लिखा है आसमान पर उठा लिया, और अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। क्योंकि ये आयत मुत्तसिल है पिछली आयत से, तो यकीनन यहाँ पे ईसा इब्ने मरियम का जिक्र हो रहा है। ये बात समझ में आती है क्योंकि कंटिन्यूशन है आयत की। आगे आ जाएं, आयत नंबर 159
व इन्ना मिन अहल किताब। अच्छा जी, आयत नंबर 159 है, और अहले किताब में से कोई न रहेगा मगर वो ईसा पर उनकी मौत से पहले जरूर ईमान ले आएगा और क़यामत के दिन ईसा उन पर गवाह होंगे। जी मोहतरम, आपकी हेल्प हो गई है इस सिलसिले में गुफ्तगू के लिए? ਜੀ ਫੀਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ 3 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਦਾ ਨਾਮ है, बकायदा अल्लाह ताला ने कुरानी आयत ईसा इब्न का नाम लिया कि उन्हें अपनी तरफ उठा लिया और क़यामत से पहले नहीं कोई और होगा जो उन पर अहले किताब में से जो उन पर ईमान नहीं लाएगा, सब ईमान लाएंगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम के अलावा किसका जिक्र हो रहा है आपने साबित करना है। मैंने तीनों आयतों से उन्होंने पढ़ के सुनाया, ईसा इब्न मरियम का जिक्र हो रहा है, उनके नाम के साथ मैंने आपको बताया है, दलील भी दी है और सबूत भी दिया कुरान मजीद से। अब आपने देना है इन्हीं तीनों आयतों से कि ईसा बिन मरियम के अलावा किसी और का जिक्र हो रहा है। शुरू हो जाए। जी शुक्रिया। सबसे पहली बात तो मैं आपको वजाहत कर दूं, इन तीनों आयतों की इसमें मैंने अपना दावा नहीं किया कि ये आयतें हज़रत ईसा से मुतल्लिक नहीं हैं, ठीक है। मैंने मेरा इस किस्म का कोई क्लेम नहीं है कि ये आयतें हज़रत ईसा से मुतल्लिक नहीं, किसी और नबी से मुतल्लिक हैं, हज़रत ईसा के मुतल्लिक ही हैं। लेकिन आपने इनमें ये साबित करना है कि बल रफ़ा जो आप कह रहे हो उसका मतलब है कि आसमान पर ज़िंदा उठा लिया। दूसरी बात आपने ये कहा है कि जी ना उनको कत्ल किया गया ना उनको सूली पे चढ़ाया गया। ये जो लफ्ज़ है ना सूली पे चढ़ाया गया, ये आपने मुझे बताना है कि आपने अरबी के किस लफ्ज़ का तर्जुमा किया है कि सूली पे नहीं उनको चढ़ाया गया। अब बल रफ़ा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कुरान मजीद में एक जगह पे एक आयत है, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा कि अगर तुम रसूल और अल्लाह के सच्चे हो तो हमें आसमान पर जाकर दिखाओ। कहा क्या करके दिखाओ? आसमान पर जाकर दिखाओ। और उसके लिए लफ्ज़ पता है उन्होंने क्या इस्तेमाल किए? और तरका फिस समा, आसमान पर जाके दिखाओ। समझ आई बात की? तो जब अल्लाह ताला ने, आप लोग तर्जुमे बताते हो ब्रैकेट में आसमान और ये, तो मुझे ये बताएं क्या नाउज़ बिल्लाह अल्लाह ताला के पास अल्फाज का ज़ख़ीरा ख़त्म हो गया था? वो नहीं कह सकता था कि मैंने हज़रत ईसा को तरका फिस समा कर लिया, अपनी जानिब आसमान पर उठा कर ले गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कहा गया कि आसमान पर जाकर दिखाओ तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का एक रसूल हूँ और उसके बाद मैं एक बशर हूँ, इंसान हूँ। यानी कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और इंसान हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता ये तरका फिस समा, ये मेरे उसमें नहीं है, मेरी कहना चाहिए कि मेरी कुव्वत में नहीं है, मेरी ताकत में नहीं है ये काम करना, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो क्यों नहीं अल्लाह ताला ने इन आयात में हज़रत ईसा के लिए तरका फिस समा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैंने उनको अपनी जानिब आसमान की तरफ उठा लिया? बल रफ़ा का मतलब क्या मतलब होता है? हम उसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला ने उनको वहाँ सलीब, ये भी आप गलत तर्जुमा कर रहे हो कि उनको सूली पे नहीं चढ़ाया गया, सूली पे वही चढ़े थे हज़रत ईसा ही, लेकिन उनकी वफात नहीं हुई थी सूली पे। अगर आप लोग ये तर्जुमा करते हो कि एक और शख्स को उनकी शक्ल देकर उठा के सूली पे चढ़ा दिया गया और हज़रत ईसा को आसमान पर ले गए, मेरा आपसे ये सवाल है, अगर अल्लाह ताला हज़रत ईसा की जगह किसी और शख्स को उनकी शक्ल ना देता, डायरेक्ट आसमान पे उठाकर ले जाता, वो यहूदी जो उनको फांसी सूली पे चढ़ा रहे थे, उन्होंने क्या करना था? 7वें आसमान पे जाके हज़रत ईसा को नीचे ले आते। इस वजह से, इस खौफ से एक आधे घंटे की तकरीर होना ना करो यार। तो आप गलत तर्जुमा कर रहे हो, हज़रत ईसा ही मुराद है इन आयात में, लेकिन आपने कहानी का सारा बेड़ा गर्क कर दिया है। मैंने ये दावा नहीं किया कि इस आयत में जो है वो बल रफ़ा से मुराद हज़रत ईसा नहीं है, सलीब देने से मुराद हज़रत ईसा है। आपने तर्जुमा अपनी मर्जी का किया जनाबे मन, कुरान में कोई गलती नहीं है यार। अपना तर्जुमा कर दो, बात खत्म। सिर्फ तर्जुमा की गरज से 158 नंबर आयत का इंग्लिश का तर्जुमा ये है, एंड द बोस्टिंग वी किल्ड मसाया जीसस सन ऑफ मैरी द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, बट दे नीदर किल्ड नॉर क्रूसिफाइड हिम, इट वाज ओनली मेड टू अपीयर सो। Even those who argue for this crucifixion are in doubt. They have no knowledge whatsoever. आप भी उनमें हैं जिनको knowledge नहीं है. They have no knowledge whatsoever. Only making assumptions. Only making assumptions. आपको है डाउट। They certainly did not kill him. ये इंग्लिश तर्जुमा लिखा हुआ है। मैंने कहा कि मार दिया, मैंने कहा कि मार दिया, मैंने तो कहा कि सलीब पे चढ़ाया गया, लेकिन वो फौत नहीं हुए। या तो मैं कहूँ ना हाँ जी वो फौत हो गए सलीब पे। अगली आयत का तर्जुमा भी सुन लें। Rather Allah raised him up to himself
and Allah is Almighty, all wise. आगे उसकी अगली का 159 का भी इंग्लिश में तर्जुमा सुनाए इसको। definitely believe अल्लाह in ताला him. ने उस आयत ग्लोबल में भाई पूरा- Before his इसको death. 159 का तर्जुमा सुनाए इंग्लिश में, इसको 159 का इंग्लिश में तर्जुमा सुनाए। मैं सुना रहा हूँ। उर्दू Every one of तर्जुमे the को क्या हो गया people of the जनाब? book. उर्दू तर्जुमे को क्या हो गया जनाब? अच्छा, नाराज ना हो, नहीं, मैंने उर्दू ग्लोबल साहब पढ़ मुझे लिया, बताएं कि सुनने आप- वालों के इसका भाई मतलब है जो- कि यू आर जो डाउटफुल लोग- अबाउट दी उर्दू जो तर्जुमा, नहीं, यू आर डाउटफुल अबाउट द उर्दू ट्रांसलेशन। मैं नहीं तो हूँ तुमने कहा कि वो गलत है, तुमने कहा कि वो गलत है, गलत, तुम मैंने नहीं, मैंने अच्छा, कहा कि मेरी- आप लोग उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हो। मेरी कॉल भी आ अच्छा, रही है इंग्लिश को आप इंग्लिश को आप सही इंटरप्रेट करोगे उर्दू से। आपकी तसल्ली के लिए जो बाकी लोग सुनते हैं ना, उनको भी बात सुनानी होती है। एवरी वन ऑफ द पीपल ऑफ द बुक विल डेफिनेटली बिलीव इन हिम बिफोर हिज डेथ, एंड on the day of judgment Jesus will not be witness against This them. is what you say now. This is what you have said now. कि at the day of judgment, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला उनसे उस वक्त क्या वादा कर रहा है कि मैं बिफोर तुझे हिज डेथ तक की मतलब है 10 मतलब मैं तो कहते नहीं, मैं तुझे वफात दूंगा। मेरी कॉल आ रही है, मैं थोड़ा अल्लाह सा ताला busy कह रहा है, एक मिनट ग्लोबल भाई, अल्लाह ताला शायद में कह रहा है कि मैं तुझे बाद में मैं तुझे वफात दूंगा और क़यामत वाले दिन तक तेरे मानने वालों को फौकियत दूंगा, जो तुझ पर ईमान लाते हैं उनको फौकियत दूंगा। तो क्या कह रहे हैं कि वफात दूंगा, ये नहीं कह रहे कि सलीब से उतरते ही मैं तुझे वफात दे दूंगा। आपके लोगों की हदीसों का हवाला देते हो, आप लोगों की हदीसों में जो आप लोग हदीसें कोट करते हैं, इमाम बुखारी की सही मुस्लिम, उसमें है हजरत आयशा कहती हैं, हजरत आयशा ने कहा, हजरत आयशा का कहना है कि हजरत ईसा की उम्र 120 साल थी। नबी करीम ने मुझे बताया था कि एक नबी दूसरे नबी से या तो इतनी कम उम्र होती है, इतनी ज्यादा होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 63 साल थी। हजरत आयशा कहती हैं हजरत ईसा की उम्र 120 साल थी, है नहीं जिस वक्त उनको मौत दी गई। कहो हदीस झूठी है। आओ, और वहां से भी भाग जाना है, हम उस जा नहीं रहे, तुमने वहां से भी भाग जाना है, जो छलांगे मार के वो भी हमारे पास बड़े बात है। नहीं, आपको सब कुछ सही बता रहा है, भागूंगा मैं नहीं बता भी रहा हूं। रखो ना 159 पे तुमने तर्जमा किया कि बाद मौत दूंगा, बाद ये तर्जमा किया। अल्लाह ने तो यही बात की है कि मैं तुझे स्लीप पे नहीं मरने दूंगा। नहीं, 59 का तर्जुमा क्या किया तुमने? से मुराद ये है कि भाई जिस तरह नॉर्मल आदमियों की मौत होती है 100 साल बाद, 70 साल बाद, 159 का लफ्ज बाय लफ्ज तर्जुमा करो। अब 159 का लफ्ज बाय लफ्ज तर्जुमा करो। चलो, हजरत ईसा ने खुद कहा है कुरान मजीद में कि जब क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला मेरे से सवाल करेगा, क्या तुमने अपने लोगों को कहा था कि मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लो? ये और आयत है, मैं 59 की ना आसूं दसियो फटाफट।